Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Linear Programming. In this session, we will be seeing sums which are based on what? Solution of LPB by graphical method. So over here, in the earlier session, we have already seen how to plot the graph of inequalities, how to plot the graph of equations, and then we have seen the formulation, that is considering maximize or minimize, maximize profit or minimize cost. So considering all these factors together, we'll be having maximize Z or minimize Z, and we'll be having few constraints. Based on those constraints, we need to find the maximum value or minimum value of the function. So let us take one example based on that, and in that we'll see the steps. So over here, the first example over here is maximize Z, which is equal to 3x1 plus 2x2 subject to constraint x1 plus x2 is less than equal to 2. 3x1 plus x2 is less than equal to 4, comma, x1 is greater than equal to 0, x2 is greater than equal to 0. So over here, we say, let us name this question as what? Question number 11. So it is maximize. Okay, I'll say question number 11 is solve the following LP problems graphically. We'll consider this, and in that we have the first question as maximize Z is equal to 3x1 plus 2x2 subject to constraints. It is x1 plus x2 is less than equal to 2, 3x1 plus x2 is less than equal to 4. We also have x1 greater than equal to 0, x2 greater than equal to 0. Now, we need to solve this question what? Graphically. अब ये graphically solve करने के लिए the first step is maximize Z is equal to this value. इसका maximum value ढूंढना है ये function का, and considering this are what? My subject to constraints. So first step होता है, we write over here as we prepare a table, and table में my first value is linear inequalities. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में टेबल प्रिपेयर करेंगे where we'll write it as what? Linear inequalities. फिर हम लिखेंगे यहां पे linear equations. After that, we write over here as points, and we write it as x1 and what? x2. उसके बाद यहां पे आ जाएगा as what? Coordinates, and then we can write the last value as what? Region, and coordinates में आ जाएगा x1, x2. Yes. So this is step number 1. क्या करेंगे? हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे. टेबल में will be having columns. First column is what? Linear inequalities. Second column है linear equation. Third one is points. Fourth one is coordinates, and the fifth one is what? For region. So linear inequalities ये कहां से आएगा? तो subject to constraint से. सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में
we have x1 plus x2 is less than equal to 2. So I will write it as x1 plus x2 is less than equal to 2. So ये हो गया लीनियर इनइक्वालिटीज. यहां से लीनियर इक्वेशन लिखना है. So we write it as x1 plus x2 is equal to 2. Now पॉइंट्स के लिए जैसे हम पहले कोऑर्डिनेट्स ढूंढते थे, वी सब्स्टिट्यूट द फर्स्ट वैल्यू एज 0. तो इधर 0 लिखा, x1 का वैल्यू 0, 0 प्लस x2 इज इक्वल टू 2. तो आंसर क्या आ जाएगा यहां पे 2. नाउ सिंस ये वैल्यू 0 नहीं है, नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट माय वैल्यू ऑफ x2 एज व्हाट 0. तो मुझे किसका वैल्यू मिलेगा x1 का. So it is x1 plus 0 which is equal to 2. तो ये हो जाएगा 2. So यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स में we have 0, 2 and then we have what 2, 0. ठीक है. So we got the answer for what linear equation के points and coordinates मिल गए. Now we consider the second subject to constraints. So इसमें हो जाएगा 3x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू क्या आएगा 4. सो यहां पे मैं लिखूंगा इट इज 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या आएगा 4. सो अगेन वी कंसीडर x1 का वैल्यू एज व्हाट 0. अगर मैंने यहां पे x1 का वैल्यू 0 कंसीडर किया, वी गेट 3 इंटू 0 विच इज 0. 0 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या आएगा 4. सो यहां पे मेरा ये वैल्यू आ जाएगा एज व्हाट 4. नाउ अगर मैंने x2 को 0 सब्स्टिट्यूट किया, इफ आई सब्स्टिट्यूट x2 का वैल्यू है 0, ये हो जाएगा 3x1 इज इक्वल टू 4. सो अगर मैंने यहां पे 0 कंसीडर किया, सो 3x1 इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3. सो वी राइट ओवर हियर द कोऑर्डिनेट्स एज 4/3. सो यहां पे कोऑर्डिनेट्स में ये हो जाएगा 0, 4, 4/3, 0. अच्छा, इसके बाद ये जो कंडीशन है दैट इज x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इसका मतलब होता है दिस इज कॉल्ड एज व्हाट नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट. सो I will just write it as x1 is greater than equal to 0, x2 is greater than equal to 0. ये खाली लिस्ट किया. I write this value over here. Yes, but this is only for the reference, that is the graph का visible region will lie in what the first quadrant. So यहाँ पे ये coordinates हो गए. अच्छा, once we plot this graph and जब इसका marking वगैरह हो जाएगा and visible region ढूंढेंगे, at that time we can fill this values कि ये रीजन पार्ट में क्या आएगा. ठीक है. तो रीजन पार्ट जब तक हम ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे तब तक वो रीजन पार्ट नहीं लिखेंगे. तो रीजन पार्ट लास्ट में फिल अप करेंगे. सो यहाँ पे ये टेबल रेडी हो गया. जस्ट दिस वैल्यू इज रिमेनिंग. सो हियर वी नीड टू नाउ ड्रॉ व्हाट द ग्राफ बेस्ड ऑन दिस कोऑर्डिनेट्स व्हिच आर टू बी प्लॉटेड. So we see the graph over here. Yes. अब एक चीज याद रखो, x1 is acting as your x coordinate and x2 is acting as your y coordinate. So यहां पे यस, तो यहाँ पे x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ हो गया. विल से x एक्सिस मतलब यहाँ पे इट विल बी एक्टिंग एज व्हाट x1 लिखेंगे. यहाँ पे वी राइट इट एज व्हाट x1 डैश. y एक्सिस का काम यहाँ पे x2 कोऑर्डिनेट कर रहा है, सो वी राइट इट एज x2 एंड यहाँ पे वी राइट इट एज x2 डैश.
ये हो गया मेरा सेंटर कंडीशन, दैट इज व्हाट, ओरिजिन। अब मुझे यहां पे ये सब प्लॉट करना है, तो लेट अस मार्क फ्यू कोऑर्डिनेट्स ओवर हियर। ये 1 लिखा, ये 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5. Then we have 1, 2, 3, 4, 5. फिर यहां पे ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5. So now फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो है 0,2. सो 0,2 मतलब इट इज योर पॉइंट ऑन योर y एक्सिस. यहां पे x2 इज एक्टिंग एज योर y एक्सिस. अब 2,0 दिस इज योर पॉइंट ऑन द x एक्सिस, मतलब यहां पे 2 एंड 0 मतलब ये पॉइंट हो जाएगा. सो ये पॉइंट एंड ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ होगा फॉर दिस इक्वेशन. अब इसका भी प्लॉटिंग कर देते हैं. इट्स 0,4. सो यहां पे 0 एंड 4 मतलब ये रहा. इट्स 4/3, नाउ व्हेन आई से 4/3 इसका मतलब होता है इट्स 1.333333 रिकरिंग होता है. सो व्हेन यू नीड टू मार्क, आपके पास जब ग्राफ होता है तो ग्राफ में क्या कंडीशन होता है, we have 10 lines in between those two values. तो 3333 तो मार्क नहीं होगा, तो we have to mark somewhere near 3 only. मतलब वो लाइन के बाद जब ये 0 to ये 1 हो गया, अच्छा 1 से ज्यादा है, अच्छा तो 1 के बाद जो थर्ड लाइन है वहां पे आपको वो पॉइंट मार्क करना होगा. एंड वी नेम दैट एज व्हाट, 4,3, सॉरी 4/3, क्योंकि दैट इज 1.333. सो ये 1 एंड 2 के बीच में आएगा एंड ये हाफ से थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे रहेगा. सो इट विल कम समवेयर ओवर हियर. यस, नाउ वी ड्रॉ द लाइंस. तो पहला है 0,2 एंड 2,0. सो वी से 0,2 एंड 2,0. तो यहां से एक लाइन ड्रॉ होगा कंसिडरिंग दिस पॉइंट्स. So यहाँ पे yes, so we draw a line over here and then we write the equation of this line, that is x1 plus x2 is equal to क्या आएगा, 2. So यहाँ पे लिखते वक्त we always write what, equation का condition, तो यही लिखा. अब सेकेंड कंडीशन है 0,4 and 4/3, so 0,4 ये रहा, 4/3, ये रहा. So here a line will be passing through this 2 points. ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स को मार्क करते हैं. यस, सो ये पॉइंट्स अभी मार्क किए यहाँ पे. एंड पहले तो ये लाइन का इक्वेशन भी लिखते हैं. इट इज 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 4. नाउ ये दोनों भी लाइन मार्क किए. ये दोनों भी लाइन मार्क करने के बाद मुझे इतना समझ में आ रहा है कि दिस लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि ये मेरा ओरिजिन पॉइंट है, तो ये ओरिजिन के दूर है. सो इसका मतलब दिस लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन. एंड जब लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन तो एक ही चीज होता है, दैट इज व्हाट, सब्स्टिट्यूट ओवर हियर द वैल्यू इज 0, 0. अगर 0, 0 सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस इज 0 प्लस 0 इज 0 होता है. इज 0 लेस देन इक्वल टू 2? यस, कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. सो सिंस द कंडीशन इज सेटिस्फाइड, तो याद रखना है वी से ये वो पॉइंट है
ये वो लाइन है, सो इसका रीजन जो है इट इज टुवर्ड्स द ओरिजिन साइड। ये हो गया मेरा फर्स्ट कंडीशन। नाउ सेम वे नीड टू चेक फॉर द सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन के लिए भी मैं सेकेंड लाइन भी चेक करता हूं, तो ये भी ओरिजिन से पास नहीं हो रहा है। नाउ सिंस अगेन दिस इज ऑल्सो नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो अगेन वी नीड टू सब्स्टिट्यूट व्हाट 0 0। तो 3 into 0 ये हो जाएगा 0, 0 plus 0 ये हो जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। मतलब ये कंडीशन वापस सेटिस्फाई हो रहा है। 0 is less than equal to 4, yes, so this condition is satisfied। so ये जो कंडीशन है this will also move towards the origin side। now since ये दोनों भी towards origin जा रहा है, so now what we need to understand, हमें ये समझना है जो इसके अंदर के तरफ पॉइंट्स है towards origin side, that will be what मेरा फिजिबल रीजन का पॉइंट। सो अगर हम यहां पे ध्यान से देखते हैं और साथ में एक और कंडीशन दिया है, दैट इज x1 is greater than equal to 0 and x2 is greater than equal to 0, that means my graph completely lies in what the first quadrant। तो ऐसा पॉइंट ढूंढो, ये देखो ये नीचे की तरफ, ये भी नीचे की तरफ, तो ऐसे पॉइंट ढूंढना है जिसमें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो। सो उस हिसाब से ये भी नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, तो ये अगर पॉइंट कंसीडर किया दिस पॉइंट, तो इसमें ये लाइन का पार्ट भी कवर हो गया एंड ये लाइन का पार्ट भी कवर हो गया। आई कैन नॉट टेक दिस पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट लिया तो ये लाइन कवर हो रहा है, बट ये लाइन कवर नहीं हो रहा है क्योंकि ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ नहीं है, ये नीचे की तरफ है, तो दिस पॉइंट कैन नॉट बी कवर्ड। सो ये एक पॉइंट हुआ, दिस इज अनदर पॉइंट, this is also one of the point and this is one more point। so 1 2 3 4 points, or you can say 1 2 3 4, ये 4 points जो है ये बन जाएगा मेरा फिजिबल रीजन वाला कॉमन रीजन, फिजिबल रीजन। so now we are going to shade these points, ठीक है। अब ये जो है ये बन गया मेरा कॉमन फिजिबल रीजन, जिसमें से ये कोऑर्डिनेट्स मेरे पास डायरेक्ट है, दैट इज 0,0। ये कोऑर्डिनेट, अच्छा याद रखो, हाँ ये कंसीडर नहीं किया, क्योंकि अगर ये लाइन कंसीडर, ये पॉइंट कंसीडर किया था तो ये वाले लाइन के कोऑर्डिनेट्स इस तरफ जा रहे हैं डाउनवर्ड्स, तो ये कवर नहीं होता, इसलिए यही पॉइंट आएगा। इसलिए याद रखना है जब टुवर्ड्स ओरिजिन वाला साइड रहेगा, जो सबसे अंदर के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे दैट विल बी योर पार्ट ऑफ द फिजिबल रीजन। ये चीज समझना। सो ये कोऑर्डिनेट भी मेरे पास डायरेक्ट है बिकॉज दिस इज पॉइंट ऑन द एक्सिस। पॉइंट ऑन द एक्सिस जो है उसके कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट होते हैं। एंड नाउ देखो ये ओरिजिन है तो 0,0 लिख दिया, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यस मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज ए ब्रैकेट में वी राइट इट एज व्हाट 2,0, तो ये दूसरे कोऑर्डिनेट हो गया। नाउ द थर्ड वन, ये बी कोऑर्डिनेट। नाउ आई डोंट हैव द वैल्यूज ऑफ दिस। अब ये जो है दिस इज द फोर्थ पॉइंट, मैं उसको नाम दे देता हूं एज व्हाट सी कोऑर्डिनेट। एंड नाउ आई से दिस इज अगेन पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो इसका वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट होता है which is 0,2। तो अभी ये कोऑर्डिनेट नहीं है। सो नाउ हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस। अच्छा तो पहले तो ये रीजन मार्क हो गया, सो वी राइट ओवर हियर एज द कॉमन फिजिबल रीजन इज बाउंडेड। अच्छा ये बाउंडेड का मीनिंग समझते हैं। नाउ बाउंडेड मतलब क्या है, सी ये एरिया फिक्स्ड है, दिस एरिया इज फिक्स्ड एंड इसके वैल्यूज हमें मिल सकते हैं।
सो वी से दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, बाउंडेड, क्योंकि ये आ रहा है टूवर्ड्स ओरिजिन. सो अब ये टूवर्ड्स ओरिजिन हो गया. सो वी ऑल्सो डू वन मोर थिंग. ये जो रीजन वाला पार्ट है यहां पे लिखेंगे ओरिजिन साइड, यहां पे लिखेंगे origin side. See, we can write origin side, या we can also write towards origin. इधर भी origin side या towards origin, ये दो में से कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ये towards origin side है इसलिए origin side लिखा. अगर समझो away from origin होता इस तरफ तो we would have written it as non origin side और away from origin. ठीक है, बट ये केस में अंदर की तरफ आ रहा है, सो वी राइट इट एज ओरिजिन साइड और वी कैन राइट इट एज व्हाट, टुवर्ड्स ओरिजिन. ये दो में से कुछ भी लिख सकते हैं. एंड दैट इज द रीजन यहां पे ये क्या है, बाउंडेड. द कॉमन, और एल्स वी राइट दिस वे, द कॉमन बाउंडेड फिजिबल रीजन इज, अब देखो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे. आई कैन से इट इज O A B C O, क्योंकि ये एंड टू एंड पॉइंट्स मुझे पता है. सो वी राइट इट एज O A B C O. सो ये हो गया मेरा कॉमन बाउंडेड फिजिबल रीजन इज दिस. अभी उसमें से मुझे O कोऑर्डिनेट पता है, A पता है, B नहीं पता है, C पता है. तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर पॉइंट B. अच्छा मुझे बताओ ये जो B पॉइंट है, कैन आई से ये एक लाइन है, तो ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये दूसरा लाइन है, ये दूसरे लाइन का इक्वेशन है. I will solve these two equations simultaneously. ये दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. तो यहां पे मैं लिखूंगा इट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. सो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. नाउ सिंस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. Now since coefficient is same, साइन भी सेम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट. तो आई विल से दिस इज माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा. यहां पे ये माइनस, मतलब ये देखो ये प्लस है, ये माइनस साइन अब इसका हो गया तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस साइन 3 का हो गया, अरे इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 1 माइनस 3 तो ये हो जाएगा -2x1. ये माइनस साइन 4 का हो गया, सो इट इज 2 माइनस 4 एंड 2 माइनस 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, -2. सो ये हो जाएगा x1 इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये देखो ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा, 2 अपॉन 2, तो उसका आंसर क्या आएगा, 1. तो ये मेरा एक वैल्यू मिल गया, दैट इज x1 मिल गया मुझे. अब मैं क्या करूंगा, नाउ सी आई विल मार्क दिस एज 1 एंड इसको 2. तो यहां पे मैं लिखूंगा पुट x1 इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1. सो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, सॉरी इज इक्वल टू 2 दिया है. सो वी राइट दिस, ये हो जाएगा 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2. सो x2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1, ये हो गया मेरा x2. सो अब मेरे पास x1 भी आ गया, x2 भी आ गया. सो देयरफॉर वी से पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स यस आर 1, 1. सो नाउ वी कैन राइट ओवर हियर एज व्हाट, 1, 1. ठीक है. सो अब इसके कोऑर्डिनेट्स है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी है, ये कोऑर्डिनेट भी है, ये कोऑर्डिनेट भी है.
Now since we have all these coordinates, बस इसके बाद एक लास्ट चीज करना है, that is considering this situation, ये सारे कोऑर्डिनेट्स के जो वैल्यूज है that is 0 0 2,0 1 1 0,2 ये सब्स्टिट्यूट करके फिर देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है. बट बिफोर दैट we'll do one thing, we'll make a note of this part and then we'll see कि what is the maximum value of that given function. ठीक है, so make a note of this part. So now we write over here as points, then we write coordinates and यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमाइज z था इसलिए मैक्स z लिखा, that is equal to 3x1 plus 2x2. So यहाँ पे points है, it is O, A, B, C and then it is O. तो O कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आ गया. सो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स में ये हो जाएगा 0,0. A के कोऑर्डिनेट्स है 2,0. ये है 1,1. B के कोऑर्डिनेट्स. C का कोऑर्डिनेट है 0,2. सो अब ये वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी से इट इज 3 into 0 plus 2 into 0. ये हो जाएगा 0 plus 0 which is equal to क्या आएगा 0. Then we have 3 into 2 plus 2 into 0. So ये हो जाएगा 6 plus 0 which is equal to 6. फिर यहां पे आ जाएगा 3 into 1 plus 2 into 1. So ये हो जाएगा 3 plus 2 which is equal to 5. And then we have 3 into 0 plus 2 into 2. So ये हो जाएगा 0 plus 4 which is equal to 4. So अब अगर यहाँ पे हम टेबल में वैल्यूज चेक करें, so we have one value है 0, second value 6 है, फिर 5 है and फिर क्या है 4. सो यहां पे मैक्सिमाइज z, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 0 6 5 एंड 4 में. सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, इट इज 6. तो कहां पर है, सो मैं बोलूंगा एट दिस पॉइंट दैट इज 2,0. सो वी राइट ओवर हियर लास्ट में, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज z max और मैक्सिमाइज z is equal to 6 at a 2,0. With this question is done. We make a note of this part. With this question is done and we end the session over here, but please revise the concept which we have seen in this session, so that will help you for the next session. Thank you.